Good evening. I hope I'm audible to all of you. We'll start with our today's class. We are left with some pages from the 10th syllabus. I know it's a repetition for some people, but then repetition of knowledge is helpful always. Okay. Let's get into the satellite launch vehicles. Today we will be covering approximately 3-4 pages and it's all theoretical. Certain things are very well known to you. So we will be going little fast. Then we will be going into the little bit of question answers, and then probably we'll end up into the some other part of the observational astronomy. Today I'll be taking Perseus constellation. It will be again reviewed. Let's get into the regular topic. Satellite launch vehicles. Satellite launch vehicles are used to place the satellite in their specific orbits. The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. The launch vehicles use a specific type of fuel. The gas produced due to the combustion of the fuel expands due to its high temperature and is expelled forcefully through the nozzles at rear side of the launch vehicle. As a reaction of this, the thrust acts on a vehicle which drives the vehicle high into the space. To every action, there will be equal, opposite, simultaneous reaction. That is what we learn in the Newton's third law of motion. So we need something, some jet impacting on the downside so that the downside reaction will lift something which is on the top, and that is that space shuttle system. I keep telling you whenever I take that general lecture on astronomy, that the system, space shuttle system, weighs in few lakhs. Like Chandrayaan was approximately 6,40,000 kilogram. Then Discovery, Apollo, these space shuttle systems are approximately 21 to 30 lakhs kilogram. But the system uses some fuel, then that particular solid or liquid propellant with some oxidizing element helps us in a combustion. मतलब जलने की प्रक्रिया में मदद करता है. उससे जो फ्लू गैसेस बनते हैं उनके थ्रस्ट से ये सिस्टम आगे जाता है. ओके, अभी ये जो सिस्टम है इसमें बहुत ज्यादा वजन फ्यूल का होता है. ये बात अगर आप दिमाग में रखें, then probably you will understand that why we use multiple stages of this particular launch vehicles. Okay, so let's get into the next paragraph. The structure of launch vehicle is decided by the weight of the satellite and the type of the satellite orbit. तो यहाँ आपको याद होगा कि हमने 2-3 टाइप के ऑर्बिट्स पढ़े थे. वो 2-3 टाइप के ऑर्बिट्स में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जाता है उसके अपने अपने एंड यूज है कि जीपीएस के लिए यूज होगा, कि हवामान के अंदाजे के लिए यूज होगा, कि टीवी के लिए, कि सेलफोन के लिए यूज होगा, वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे वो जो एमईओ मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट, उन सब की बात हो रही है. द फ्यूल ऑफ द व्हीकल आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर्स. जितना ऊपर भेजना होगा उतना फ्यूल ज्यादा लगेगा. ये तो बहुत ही मामूली सी आसान सी बात है. The fuel forms a major portion of the total weight of the launch vehicle. Thus, the vehicle has to carry large weight of the fuel with it. To overcome this problem, launch vehicles with a more than one stages are used. Stage क्या होती है कि एक टंकी खत्म हो गई तो उसको फेंक दो, तो भाई एटलीस्ट कंटेनर का वजन कम हो गया. इस तरीके से ये जो स्टेजेस है उनकी बात होगी. Due to this, the weight of the vehicle can be reduced step by step after its launching. For example, consider a launch vehicle having 2 stages. For launching the vehicle, the fuel and the engine in the first stage are used. This imparts a specific velocity to the vehicle and it takes it to the certain height. Once the fuel in this first stage is exhausted, the empty fuel tank and engines are detached from the main body of the vehicle and fall either into sea or an unpopulated land. As the fuel in the first stage is exhausted, the fuel in the second stage is ignited. यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें आपको एमसीक्यू में या 1-2 लाइन के जवाब जो होते हैं उसमें, या फिर थोड़ा ब्रीफ टाइप का जो लॉन्ग आंसर होता है उसमें समझने वाली बात इतनी है कि अगर आपको लॉन्चिंग के बारे में पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन का तीसरा लॉ यूज होता है. भाई मल्टी स्टेज चीजें इसलिए यूज होती है क्योंकि इनका वजन बहुत होता है और एक एक चीज जैसे खत्म हो जाए तो उसको डिटैच करें तो उसका वजन कम होने के कारण अगली स्टेज में जिस चीज को उड़ाना है या उठाना है या अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर लेके जाना है, तो
ओवरऑल ताकत कम लगती है वजन कम होने से, तो फ्यूल भी कम लगता है। इसी को आपको इंग्लिश में लिखना है, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। सो जैसे ही फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई, डिटैच हो गई, फेंक दी गई, तो वहां से निकलेगी और हमारे सर पे या घर पे आके गिरेगी, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और सरकार को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मिशंस जो है श्रीहरिकोटा की अगर हम बात करें या किसी भी लॉन्चिंग साइट की बात करें, तो कोस्टल रीजन में हो, तो उड़ के अगर गलती से कुछ नहीं मतलब गिराना है या नहीं ठीक से उड़ा भी, तो भाई अनपॉपुलेटेड या फिर जो एकदम ही सी वगैरह है, जहाँ पे लोगों को आप बोल सकते हो कि बैरिकेटेड एरिया है, यहाँ पे जाना नहीं है, वहां पे गिर जाए तो पैसे का, टेक्नोलॉजी का, सामान का नुकसान होगा, बट इंसान की जान को खतरा नहीं होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखो कि क्यों ये सारी चीजें इस तरीके से होती है। तो पहली स्टेज के बाद सेकंड स्टेज इग्नाइट होगा। यहाँ पे आपको दिखाया हम बाजू वाले इसमें जहां माउस घुमा रहा हूं वहां पे, कि सैटेलाइट टॉप पे रहेगा। फिर लास्ट में जलने वाली स्टेज, यूज होने वाली स्टेज, मतलब फोर्थ स्टेज के फ्यूल, थर्ड स्टेज के फ्यूल, सेकंड स्टेज के फ्यूल, फर्स्ट स्टेज के फ्यूल, और इंजन यूजिंग द सॉलिड फ्यूल विच प्रोवाइड द इनिशियल थ्रस्ट। इनिशियल थ्रस्ट जो है एसआरबी सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स देते हैं, उनका भी वजन काफी होता है। तो यह है यहाँ लास्ट में सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स है, जो उसको पहली स्टेज में उठाते हैं जब सबसे ज्यादा वजन होता है और फिर उनको डिटैच किया जाता है। तो यहाँ पे हम फिर से पढ़ेंगे कि however the vehicle now contains only one, that is second stage, the weight now being reduced, the vehicle can move with a higher speed. Almost all vehicles are made up of either two or more stages. पैराग्राफ में बात की हम लोगों ने दो स्टेज वाली, चित्र में हमने देखे हैं ऑलमोस्ट चार स्टेज वाले। ओके, as an example, the structure of the PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle, developed by ISRO of the India is shown to the 10.5A. तो आपने जो चार स्टेज वाला देखा वो पीएसएलवी का स्ट्रक्चर था। अभी स्पेस शटल सिस्टम की बात करते हैं। ओके, ये जो आपने देखा ये आपको समझ में आया होगा, ऐसे में पकड़ के चलता हूँ कि आपको कोई चीज पेलोड लेके जाना है तो उसको सिर्फ लेके जाना है। सोचिए कि आप जो दिवाली में रॉकेट उड़ा रहे हो, उस पर आपने एक 10 कॉकरोच को नहीं 10 चींटियों को रखा है और उनको आपको कहीं भेजना है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग। आपने घर के टेरेस से रॉकेट लॉन्च किया हो दिवाली वाला, और सामने मस्त एकदम छोटी सी पाउच में या एकदम किसी चीज में, और सामने 10 चीटियां ऊपर वाले स्टेज में एकदम रखी थी। नीचे से जैसे 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 जलते जाएगा फाइनली वो जाके वहां गिर जाएगा। तो अगर गर्मी वहां तक नहीं पहुंची होगी तो वो चीटियां बच जाएंगी और वो दूसरे टेरेस पे पहुंच जाएंगी। उनको सब प्रॉब्लम नहीं होता है, कहीं से भी गिरती है तो बच ही जाती है, तो मतलब उनका यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गया। ऐसे ही जो टिप है, प्लेस फॉर द सैटेलाइट या पेलोड, वो लास्ट में होता है, जिसको ये सारी गर्मी से या थ्रस्ट से और इम्पैक्ट से बचाया जाता है। आप बहुत सारे लॉन्चिंग और उनका लैंडिंग देखे होंगे इंटरनेट पे। तो ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, या सॉरी उसके पहले जो रोवर वगैरह भेजा था, उनका लॉन्चिंग वगैरह सॉफ्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती। तो हमने उसमें की बात अनमैन्ड मिशन की। अभी हम यहाँ नीचे जो 10.5B देख रहे हैं वो स्पेस शटल मतलब मैन्ड मिशन जैसी कुछ चीज। तो उसमें उसमें दिखाया कि पहले एसआरबी सॉलिड रॉकेट बूस्टर से सेपरेट हो गया, फिर वो जो ऑरेंज वाला टंकी है वो सेपरेट हो गया। वो ऑरेंज वाले टंकी में लिक्विड फ्यूल के साथ ऑक्सीजन का भी टंकी है या ऑक्सीडाइजर भी है, और बाद बाद में यहाँ पे आपका स्पेस शटल है जिसके साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, और फिर वो यहाँ लॉन्च भी करेगा और उसके इर्द गिर्द भी घूमेगा और वापस भी आएगा। ओके, तो वो साइकिल वहां पे अच्छे से दिखाया है। सैटेलाइट इज लॉन्च इन इट्स ऑर्बिट एंड स्पेस शटल रिटर्न्स टू अर्थ। यही चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला। The launch vehicles are costly because they can be used only once. USA has therefore developed space shuttle which returns to the Earth except for the fuel tank and can be reused in a multiple launches. ऐसी अभी मल्टीपल टेक्नोलॉजी, ये पुरानी किताब है, थोड़ा सिलेबस पुराना रहता है। आजकल बहुत सारी चीजें समुद्र में गिरने के बाद भी रीयूज की जाती है, क्योंकि ये जो स्टील होता है ये बहुत कॉस्टली होता है और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सारा प्रोसेस ही कॉस्टली है। तो उसकी वजह से सारी चीजों को, मतलब अगर सोचिए
कि ये बूस्टर्स की ऑक्सीडाइजर की टंकी जब गिर गई समुद्र में, उसको एक लोकेट किया जाता है। वो लोकेट करने के बाद शिप से उसको खींच के सतह पर लाके उसको रीयूज भी किया जाता है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस one page, page number 140. Now let's go further. Always remember, the rocket, type of firecracker used in Diwali, is also sort of launcher. In this rocket, the fuel is ignited using a fuse, and the rocket is projected into the sky just like a satellite launcher. Similarly, if a balloon is blown and released with its end open, the air in the balloon is forcefully ejected and the balloon is pushed in opposite direction. This can be explained using the Newton's third law of motion. आपको सिर्फ रिवाइज करने के लिए, आपको सिर्फ थोड़ा एंटरटेन करने के लिए, आपको अलग तरीके से सेम फंडामेंटल बताने के लिए आजकल सरकार और किताबें बनाने वाले लोग जो मेहनत कर रहे हैं, वो यहाँ आपको दिखती होगी। जो बताया वो सारी चीजें आपने अनुभव की होंगी, नहीं की होंगी तो उसमें आपकी मेहनत कम है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। ऐसा आप बिंदास सोच सकते हो। ये जो बलून वाला चीज उन्होंने बताया, वो तो हम लोग खेलते थे बचपन में। ऐसे बलून को अगर आप हवा भरो और छोड़ दो तो इधर उधर कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा भागता है, तो उसको पकड़ने में काफी मजा आता है। एनीवे, आई होप यू हैव ट्राइड दिस वंस, सो यू नो द न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्सपीरियंस। स्पेस मिशन अवे फ्रॉम अर्थ, अभी हम स्पेस मिशन की बात कर रहे थे जिसमें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने तक की ही बात कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली एलईओ, एमईओ या एचईओ, मतलब मैक्सिमम 35,000 किलोमीटर के आसपास की हम बात। अभी हम बात करेंगे भाई पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है और 35,000 तक भी मोटा मोटी हल्का फुल्का तो कुछ ना कुछ तो आपको सेंस होगा। बट अगर हम उसके बियॉन्ड जाके मून पे जो 3.5 लाख किलोमीटर पे है, या हम बात करें मार्स की या फिर वीनस की या मर्क्यूरी की या सन की, सन के ऊपर अभी पार्कर प्रोब गया, ये सारी चीजों के लिए हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जाना पड़ेगा और उस चीज को एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसको एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। वो यहाँ हम पढ़े। एज वी हैव सीन अबाउट, artificial satellites are being used for making our life more and more enriched. आपको सारे फंक्शंस मैंने 2-3 बार तो बता दिया, अभी रिपीट नहीं करेंगे। However, in previous standard we have learned about how the telescope aboard artificial satellites are used to gather information about various objects in universe. ये हबल स्पेस टेलीस्कोप या कोई भी टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के सहारे से भेजा जाता है, और पूरा टेलीस्कोप ही एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह काम करता है विद इट्स रिसीवर्स एंड व्हाट यू कैन से ट्रांसमीटर। Similarly, some space missions are used to gain further knowledge about the universe. जेम्स वेब टेलीस्कोप की हम बात करें, in this mission spacecraft are sent to the nearby objects in the solar system to observe them more closely. जैसे मीटियोर्स तक का भी ऑब्जर्वेशन करने के लिए उनके ऊपर सैटेलाइट प्रोब भेजे जाते हैं। New information has been obtained from such missions and it is helping to understand the creation and evolution of our solar system and the universe. जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जो 70,000 करोड़ से भी ज्यादा खर्च करके 20 साल में बना, हाल ही में भेजा गया, और अभी ओपन अप हो रहा है, वो काम करना शुरू कर रहा है, पहली कुछ तस्वीरें भेजी भी। वो काम करने वाला है कि शुरुआती तौर पे 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर जब ऊर्जा के स्रोत से इस यूनिवर्स का निर्माण शुरू हुआ और पहले तारे बने, तो बनने की प्रक्रिया कैसे एग्जैक्टली शुरू, ये सारी चीजें वो इंफ्रारेड या फिर ऑप्टिकल वेवलेंथ में चेक इंफॉर्मेशन पाने की कोशिश करें। इसलिए उसको ऐसी जगह लोकेट किया गया है जहां पे लैग्रैंजियन पॉइंट होते हैं, वहां पे कोई भी हीट नहीं आए, ना मून की तरफ से रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड किसी भी तरीके से वहां पहुंचने चाहिए, नहीं चाहिए, ये कोशिश हो रही है। वो आप थोड़ा पढ़ लीजिए फुर्सत में एग्जाम के बाद। For such missions, the spacecraft must escape the Earth's gravitational force to travel into the outer space. To achieve this, the initial velocity of the moving object must be greater than escape velocity of the Earth. As we learned in the chapter on gravity, escape velocity on a planet can be obtained using this formula. यहाँ बताने की बात यही है कि हर मास का एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, मास बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर से भाग जाने के लिए जो वेलोसिटी देनी पड़ेगी और सस्टेन करनी पड़ेगी वो भी बढ़ेगी। पृथ्वी के लिए ये वेलोसिटी जिस फार्मूला से आती है, पृथ्वी का मास और रेडियस डालने से, वही वेलोसिटी के फार्मूला में
आप किसी भी प्लेनेट का मास और रेडियस डाल दो तो जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो अगर वहां का आपको मालूम है तो ऑब्वियसली आप उससे इमीडिएटली एस्केप वेलोसिटी निकाल पाओ। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ यहाँ पे निकाला है, शायद आपको ये निकालने के लिए प्रॉब्लम भी आ सके या फिर कंपैरेटिव रेशियो फॉर्म हो सके, ऐसे प्रॉब्लम आते हैं। तो आपको दिया होगा एक का एस्केप वेलोसिटी, दूसरे का एस्केप वेलोसिटी निकालना होगा, जबकि मास और रेडियस का रेशियो दिया होगा। ये सारी चीजें जो बच्चे एक बार पढ़ाया उसके बाद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं और डाउट्स आने के बाद जब पर्सनली मिलने के बाद पूछते हैं तो उनको ये सब चीजें बहुत आसान लगती है। जो सोचता है कि मुझे 10 लोग पढ़ाएंगे 20 लोग पढ़ाएंगे भाई कुछ नहीं करूंगा, तो 50 लोग भी पढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्ट भी आके पढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं। तो ये फार्मूला में जो वैल्यूज है वो हम लोग 2-3 बार तो देख चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई ये मल्टीप्लीकेशन में क्या बड़ी बात, कुछ बड़ी बात नहीं है। 6.67 है, नीचे 6.4 है, दोनों को हटा दो, पकड़ लो। 6 इंटू 2 12 हो गए, और ये 10⁻²4 यहाँ नीचे 6 है, तो ऊपर के 6 चले गए तो 18, 18 में से 11 चले गए तो रह गए 7, और 12 आए, तो मतलब तकरीबन 11 की जगह 11.18 की जगह मैं 12 पकड़ रहा था, और इन्होंने पकड़े थे 10⁶। क्या 10⁶? 6 थे, वो किलोमीटर को कन्वर्ट करके मीटर में लिया है इन्होंने, तो अभी वो 11.18 किलोमीटर पर सेकंड। सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिए। स्पेसक्राफ्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से परमानेंटली भाग जाना है ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से, तो हमको उसको 11.18 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मतलब एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ देनी पड़ती है। ओके, फिर से एक बार डू यू नो the astronomical object closest to us is the moon. Light takes 1 second, actually 1 minute, 1.1 to reach from the moon to the earth. It means that if we travel with the speed of light, it will take us 1 second to reach the moon. मतलब 1.1 सेकंड, क्योंकि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट की रफ्तार है। चंद्रमा एवरेज 3.84 लाख किलोमीटर पर रहता है, तो आप समझ सकते हो कि 1.09 मतलब 1.1 पकड़ सकते हो आप 1 सेकंड। बट लाइट के स्पीड से जाएंगे तो 1.1 सेकंड में पहुंचेंगे। स्पेसक्राफ्ट जब भेजते हैं तो ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का स्पीड 60,000 से 70,000 किलोमीटर पर आवर रहता है, विच मीन 60,000 से 70,000 डिवाइडेड बाय 3600, जवाब आएगा 17 किलोमीटर पर सेकेंड, जो बहुत ही कम स्पीड है 3 लाख के कंपैरिजन में। इसलिए शॉर्टेस्ट टाइम टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून सो फार इज 8 आवर। मतलब साइज। अभी थोड़े मून मिशन पढ़ लेते हैं, मैं चैट बॉक्स भी देख लेता हूँ, टेंशन मत लीजिए किसी को कुछ डाउट है। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। श्लोक, मेरी वॉइस, बाकी कोई नहीं बोल रहा है श्लोक, मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए। बाकी लोग प्लीज प्रॉम्प्ट, मेरी आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिखिए जरा, 2-4 लोग ठीक से आवाज आ रही है। श्लोक ने लिखा था 5 मिनट पहले, तो बाकी लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो आपको लिखना पड़ेगा चैट बॉक्स में। 2 मिनट का मैं देख लेता हूँ चैट बॉक्स में। यस, क्लियर क्लियर सर, इट वाज ब्रेकिंग इन बिटवीन, पूर्वा को भी ब्रेक हो रहा था, बाकी लोगों को तो ठीक ही लग रहा है। फिर भी आप फिर से ब्रेक हो रहा है ऐसा लगे तो आप मुझे आवाज, आवाज मतलब इवन श्लोक आप माइक ऑन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आप नाउ इट इज क्लियर, ओके। सो वी वर टॉकिंग अबाउट मून मिशन। Since the moon is the closest astronomical object to us, the first space mission to object in the solar system were the mission to the moon. Such missions have so far been executed by the USA, Soviet Union, European countries, China, Japan, and India. The spacecraft in a Luna series sent by the Soviet Union reached the moon. Luna 2 launched in 1959 was the first such craft. After that, till 1975, 15 spacecrafts made chemical analysis of the moon and also measured its gravity, density and radiation. अभी यहाँ पे इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसते एग्जाम वाले, बट आपको ये सारे चीज में जो सब शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी, कब हुआ, लूना 2 ने कब लैंडिंग मतलब
लॉन्च किया गया, 1975 तक कितनी स्पेस मिशन हुई, ये सारी चीजें उन्होंने क्या क्या मेजर किया, ये सब आपको याद रखना है। Last 4 crafts even landed on the moon and brought the samples of the stones on the moon for the analysis in laboratory. All these missions were unmanned. America executed from 62 to 72, especially of the missions was that some of these were manned. July 1969, Neil Armstrong became the first human to step on a moon. In 2008, ISRO, Indian Space Research Organization, successfully launched Chandrayaan-1, placed it in an orbit around Moon. It sent successful information to Earth for about a year. The most important discovery made during the mission was presence of water on the Moon surface nearby the polar region. India was the first country to discover this by the MIP. Okay, Moon Impact Program की एक चीज को एक फाइनल स्वरूप देने में एपीजे कलाम साहब ने मदद की थी, उसी के सहारे हमको ये आउटपुट मिला। बट ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी नहीं क्योंकि आगे था। मार्स मिशन हमने किया, आपको मालूम है एमओएम, मार्स ऑर्बिटर मिशन। नेक्स्ट टू द मून, द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज द मार्स। मेनी नेशंस सेंट स्पेसक्राफ्ट टू द मार्स। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशंस वर अनसक्सेसफुल। हमें अनुभव नहीं, हमारे ये जो दो लोग मून और इनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस और सन के, इन चीजों को किसी और प्लेनेट में जाने के लिए जिस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट से घूमते घूमते एक प्लेनेट से दूसरे सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल यूज करके टेंजेंशियल वेलोसिटी लेके दूसरे ऑर्बिट में इंसर्ट होके वहां पे घूमते घूमते स्लो होके लैंड होना या ऑर्बिट करना, ये चीजें ऑब्वियसली थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। इसलिए बोला जाता है कि समथिंग विच इज कॉम्प्लिकेटेड इज समथिंग लाइक अ रॉकेट साइंस। तो ये रॉकेट साइंस। द स्पेसक्राफ्ट Mangalyaan made by ISRO using minimum expenses was launched in 2013 November and was placed into the orbit around the Mars in September 2014. It obtained very useful information about the surface of Mars and the atmosphere around it. आपको मालूम है मार्स लाल दिखता है क्योंकि उसमें आयन ऑक्साइड का कंटेंट बहुत ज्यादा है। हाल ही में लेटेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसरो और DRDO जो कुछ मिलके मिशन कर रहे हैं उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट ट्रेसेस हमारे साइंटिस्ट को मार्स के बारे में मिले। और भी बहुत सारी चीजें आप सुनते होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे कि एस्ट्रॉयड आने वाला है, टकराने वाला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नीचे के तीनों नामों से हम बहुत भली भांति परिचित हैं। हाँ, मतलब देश को प्राउड फील हो, महिलाएं कुछ भी कर सकती है जो जेंट्स कर सकते हैं, इनके एक उदाहरण के तौर पे आप हमेशा ही इनको देख सकते हैं। राकेश शर्मा जी was the first Indian to travel to space. He went into the space with the 2 Russian astronauts under the joint Indo-USSR space program. He stayed in a space for 8 days. Okay, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, ये सब जो एयरफोर्स की उपाधि होती है, एयरफोर्स वाले व्यक्ति थे जो आगे जाके इस काम में भी इन्वॉल्व हुए, उनको नॉमिनेट किया गया था। कल्पना चावला जी, आपको सबको पता ही है पूरी स्टोरी। obtained her engineering in aeronautics degree from Punjab in 1988, doctorate from University of Colorado. She was in space for 336 hours during a research mission. While returning to Earth from the space on the 1st February 2003, the Columbia spacecraft exploded and Kalpana Chawla ji perished. ऐसे उनके साथ और भी 7 साथी थे। ये इंडियन है तो हम इनको अच्छे से याद रखते हैं और बाकी सबको भी याद रखना चाहिए। Sunita Williams traveled to the International ISS in Space Shuttle Discovery 2006. She worked for the 29 hours outside the space station, created the record by staying for the 192 days in a space. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सभी तो याद नहीं रखी जा सकती, पर किताब में दी हुई चीजें याद रखिए। Mission to other planets. Many missions have been executed to study other planets also. In some of these missions, the spacecraft orbited the planet, some landed on the planet, some passed nearby the planet and observed them. These are called flyby missions. Additionally, spacecrafts have been sent to observe the asteroid, comets. They have successfully collected some specimen samples like dust, stone from the asteroid and brought them back on the surface of the Earth. We are getting very useful information from all these missions, clarifying our concept about the origin, evolution of the solar system. इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने तो आपको बोला ही है
कि ये शुरुआत की एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट भाभा जी के न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इंटरेस्ट के चलते 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 आगे जाके स्पेस डिफेंस की शुरुआत हुई। India also has made remarkable progress in science and tech of the launch vehicles. Various types of launch vehicles have been developed to put satellites having weight up to 2500 kg. आप देख रहे हैं 2500 मतलब 2500 इतना ही वजन लेके जाने के लिए 6 से 7 लाख किलो तक के टोटल सिस्टम को आसमान में लॉन्च करना पड़ता है। पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में तो आपने सुना है, कुछ जापानीज वगैरह यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, उनको इतना वजन नहीं लेके जाना पड़ता है जब 2500 किलो वगैरह लेके। दिस इज कॉल्ड रिफाइनमेंट इन टेक्नोलॉजी। आज उस पर ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। विल जस्ट टॉक अबाउट PSLV and JSLV are two important launchers. The scientific and technological feats achieved by India in the field have significant contribution to the national and social development. नेशनल डेवलपमेंट तो आप समझ ही पा रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वेदर फोरकास्टिंग। सोशल डेवलपमेंट ये है कि जब हम मून तक पहुंच गए, मार्स तक पहुंच गए और भी कई चीजें हम सोच रहे हैं, तो हमको सोशल डेवलपमेंट के तौर पे आपस में जो गलत फहमियां है, आपस में जो अननेसेसरी डिफ्रेंसिएशन हम करते हैं इस डाइवर्स नेशन में, जहाँ धर्म भाषा से, बेवजह धार्मिक चीजों से बेवजह लगाव है, सुपरस्टिशंस है, इनसे हमें हटना है। ये सोशल डेवलपमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, हमको पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटीज देती है उनका सही यूज करना चाहिए। ये सोशल डेवलपमेंट के नाम पे सब डाला जा सकता है, कितना हो रहा है आप देख लीजिए। इनसैट एंड जीसैट पढ़ चुके हैं। सैटेलाइट सीरीज इज एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस। अवेलेबिलिटी ऑफ टेलीफोन, television, internet services all over the nation has been possible due to these satellites only. तो सैटेलाइट ठीक से काम कर रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, कोई रिलायंस वाला होता है, कोई एयरटेल वाला होता है, कोई वोडाफोन वाला होता है, इनको चाराना आठाना बचाने के चक्कर में आपका सिग्नल ठीक से नहीं, इन थोड़ी इधर उधर की लाइट चली जाए तो उनके पास कोई बैकअप नहीं होता। तो अगर आपका टॉवर के ऊपर का सिग्नल रिसीविंग सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल नेटवर्क ठीक नहीं रहेगा। इतने पैसे लेने वाले इस सब जो टेलीकम्युनिकेशन वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको इतनी भी अकल नहीं है या देशभक्ति नहीं है, ना मानवता के प्रति कुछ समझ है, उनको सिर्फ पैसे के प्रति प्यार। EduSat, ये एजुकेशन से रिलेटेड सैटेलाइट द सीरीज इज यूज्ड especially in the field of education. IRS, remote sensing satellite series is working for the monitoring and management of natural resources and disaster management to exactly locate position of any place on the earth's surface in terms of the precise latitude and longitude. IRNSS satellite series has been established. सब कुछ जरूरी है, मैं सिर्फ पढ़ दिया क्योंकि ये पढ़ के समझ के याद रखना। सब बोलते हैं ना सब कुछ याद नहीं रखना होता है, समझना होता है। कुछ चीजें जो है जिनमें कुछ समझना नहीं, सिर्फ याद रखना होता है। 10 बार पढ़ोगे समझ में आएगा, फिर हर 5 दिन बाद उसको पढ़ते रहना है। एग्जाम के पहले 4 बार पढ़ के जाना है, फिर एग्जाम में अच्छे से आप उसको लिख पाओगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप उस फील्ड में जाओगे, खुद काम करते करते सारी चीजें जबानी याद हो जाएंगी। तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ कि प्रैक्टिकल थिंकर होना चाहिए, सब याद नहीं करना होता है, सब कुछ समझ के लेना होता है। ऐसे एकेडमिक्स में नहीं होता है। 10वीं 12वीं तक बहुत सारी चीजें याद भी करनी होती है, बहुत सारी चीजें समझनी भी होती है, कुछ चीजें दोनों मिलके करनी। तो ज्यादा गलत लोगों से एडवाइस मत लो, आपको खुद को पढ़ना है। सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तुम्बा, श्रीहरिकोटा, चांदीपुर, ये सब कोस्टल। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, केरला का सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर श्रीहरिकोटा एंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ओके, तो पढ़ लीजिए फुर्सत से, अभी आपने एग्जाम के लिए पढ़िए। साइंटिस्ट की इंट्रोडक्शन के तौर पे सही पायोनियरिंग वर्क अगर किसी का है तो विक्रम साराभाई जी का है। इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। His efforts led to the foundation of PRL, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. In 1962, Indian government constituted Indian National Committee for Space Research under chairmanship, and first satellite launch center was established at Thumba in 1963. The launching of India's first satellite Aryabhatta into the space was the result of his efforts. He played an important role in the establishment of ISRO. स्पेस डेब्रीज जिनकी हम बात करने वाले थे, मतलब जो हमको टूटते तारे दिखते हैं, मीटियोर शॉवर दिखते हैं, इसके अलावा भी
अगर नेचुरल चीजों के कारण ये दिखता है तो आर्टिफिशियल चीजें भी आप छोड़ रहे हैं। वो जब ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के ऊपर वाले लेयर में रहती है तो एक तरीके से ऐसा कचरा है जो कभी भी उसे पे खड़ा कर सकता है। इन एडिशन टू दैट, satellites, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, parts of the launchers detached during the launching, debris generated to the collision of satellites with the others of the satellites, or any other objects in the space. According to one estimation made in 2016, there are about 2 crore pieces of length more than 1 centimeter revolving around the Earth. All this is nothing but a debris in the space, and the distance is around 35,000। जहां से नीचे आएगा, जलेगा नहीं एटमॉस्फेरिक लेयर में, तो तकलीफ इतनी देगा कि आप सोच नहीं सकते। एनीवे, दिस डेब्रीज कैन बी हार्मफुल टू द सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो ऑर्बिट्स में उनको भी। ग्रेविटी नाम की मूवी आपने देखी होगी। इट कैन लॉस्ट इन स्पेस नाम की वेब सीरीज भी आपने देखी होगी। इट कैन बी collide with it can collide with these satellites or spacecraft and damage them. This debris is increasing day by day। सब लोग भेज रहे हैं, जिनको कुछ समझता नहीं वो भी पैसे से भेज रहे हैं। Soon it will be difficult to launch new spacecraft. It is therefore very essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will have solution for this problem and the future satellite and spacecraft will not be in a danger anymore। सबका ठीक से प्लानिंग होना चाहिए, यही बताने की कोशिश हो रही। आधा घंटा हो गया, पढ़ के हो गया। अभी किताबें लिखी है, स्पेस एंड साइंस, स्टोरी ऑफ इसरो बाय गोवारिकर, नार्लिकर जी, वेरी फेमस साइंस फिक्शन राइटर्स एंड वेरी वेल नोन साइंटिस्ट आल्सो। तो सवालों में जाएंगे थोड़ा। If the height of the orbit of the satellite from the Earth surface is increased, the tangential velocity of the satellite will decrease। Obviously ना, कम स्पीड में घूमेगा तभी तो 24 घंटे में चक्कर लगाएगा। The initial velocity during the launching of Mangalan must be greater than the escape velocity of the Earth। State the reason whether the following sentences are true or false। So the spacecraft has to be sent away from the influence of the Earth's gravitational field, its velocity must be less than escape velocity, है ना। तो ये false। Has to send away from the influence of the Earth, its escape velocity, velocity must be greater than escape। Escape velocity on the moon is less than that of the Earth। True। A satellite needs specific velocity to revolve in a specific orbit। True। If the height of the orbit of the satellite increases, its velocity must also increase। False। ऊपर ही हमने देखा था। नीचे जो brief मांगे हैं, what is the mean by artificial satellite, हमने पढ़ चुके हैं। What are the satellites classified based on their function, वो भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। ये सारी चीजें पढ़ के फायदा नहीं, समझ के फायदा नहीं, याद भी रखनी पड़ेगी तभी लिख पाओ। What is meant by orbit of the satellite मालूम है। What basis and how are the orbits of the artificial satellite classified, तो सब आप लिखोगे। एमई हो गया, एडी हो गया, एचई हो गया। Why are the geostationary satellites are not used for the studies of the polar region, वो भी हमने देख चुके हैं कि उनका जो डिस्टेंसिंग है, उनका जो ऑर्बिटल पीरियड है, ये सारी चीजों के चलते वो सब यूजफुल नहीं होते। तो ये जो बड़े बड़े सवाल हैं, ये सब आपको किताब में मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, सब प्रॉब्लम्स, उसको आप सॉल्व कीजिए, नहीं आएगा तो आप मुझे रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ये टेबल है तो बहुत ही सिंपल है। तो इसी तरीके से हमने हमारा आज का जो मैं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं सिर्फ इस प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 10th का चैप्टर खत्म हो गया। 10th के बच्चों को क्लास लीव करना है तो कर सकते हो, बट रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, बट कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के क्लास में। आपका 10th का सिलेबस खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। 2-3 दिन में मैडम बताएंगे आपको कि आपकी एग्जाम एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट होगी, सिर्फ 10th के बच्चों की नहीं, सबकी होगी, क्योंकि आप सब ने ये पिछले 2 क्लास अटेंड किए। ये है 44, तो 43 का भी वीडियो अवेलेबल है। 44 का 2 दिन में आ जाएगा। तो आपको पढ़ना है 10वीं का किताब लेके 10वां चैप्टर और एग्जाम देनी। अभी आपको क्लास लीव करना है 10th वालों को, तो आप लीव कर सकते हो। वी आर गोइंग इनटू द ऑब्जर्वेशनल पार्ट।
और आज हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे एक कॉन्स्टिलेशन कॉल्ड पर्सियस। पर्सियस यानी ययाति। ययाति मतलब जो बहुत फेमस ययाति नाम का नॉवेल लिखा गया था खांडेकर जी की तरफ से, उसका ये इंग्लिश वर्जन है पर्सियस। लेट्स गेट इनटू इट। अगर आप स्काई मैप खोलोगे कोई भी तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा मिलेगा, नॉर्मली मार्च महीने के एंड में। बट कब? दोपहर को। तो सन आपको यहाँ दिख रहा है, जो एक पाइसिस मतलब इसमें मीन राशि के आसपास है। अभी ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज हम पर्सियस कॉन्स्टिलेशन जो पढ़ने वाले हैं वो यहाँ कहीं दिख रही है क्या? तो नहीं है, तो हम उसको आगे जाके देखें। यहाँ जरूर दिख रही होगी, यस, ये पर्सियस। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की है। आप देख सकते हो ये पर्सियस जो है उसके इर्द गिर्द अर्सा माइनर मतलब यहाँ पोल स्टार है, और फिर यही कहीं शर्मिष्ठा भी दिखेगी, कैसियोपिया, ये है इधर कैसियोपिया। तो ये सारी चीजें में से सिर्फ एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये पर्सियस है। कुछ ऐसा दिख रहा है, वाई की तरह दिख रहा है, तो ये वाई ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको बढ़ा करके यहाँ दिखा दे दिया। अभी हम थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, बट पहले कुछ चित्र देख लेते। देखिए आप, यही चीज थोड़ा ब्राइटर वर्जन ऑफ स्काई हो तो आपको थोड़ी ऐसी, और कोई पुराने जमाने में इस तरीके से इमेजिन किया राजा को, ये वाई ही है, ऐसा वाला, ऐसा, ओके, ये वाला, और ये ऐसा। आप बोलोगे ये क्या है? जैसे भूतनी का चेहरा। यस, दिस इज द मेडुसा। मेडुसा कौन थी? एक राक्षसी, और जिसको भी देखती थी वो बन जाता था पूरा पत्थर का। तो ऐसे ही ये स्टोरी है। तो ये भाई ययाति है जिसने उसको, मतलब पर्सियस, यूरोपियन माइथोलॉजी के हिसाब से जिसने मेडुसा का सर काट दिया। तो स्टोरी सुनेंगे। पहले देखते हैं कि आसमान में अगर सारी कॉन्स्टिलेशन को देखना शुरू कर दे तो पर्सियस, ओरिगा मतलब सारथी, ट्रायंगुलम, एंड्रोमेडा मतलब देवयानी, कैसियोपिया मतलब शर्मिष्ठा, कैमिलोपार्डिलिस मतलब जिराफ, और यहाँ एरिस के बीच में बैठा हुआ है। ये उसके ब्राइट तारे हैं बहुत सारे, इनके नाम सब जानेंगे हम लोग। तो यहाँ तक आके सिर्फ आपको ये समझ में आए कि ये कैसे दिखते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे आके रोकते हैं और आपको जो इम्पोर्टेंट थेरोटिकल पार्ट है वो बताना चालू करते हैं। पर्सियस एक एंशिएंट ग्रीक हीरो था। अभी हम पहले बात करेंगे यूरोपियन वेस्टर्न माइथोलॉजी, ओके, जिसने मेडुसा नाम की राक्षसी को डिफीट किया, जिसमें एक फेमस स्टार है अल्गोल। यहाँ देख रहे हैं आप, अल्गोल करके लिखा है। यह अल्गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है विजिबिलिटी मतलब ऑब्जर्वेशनल के लिए भी, अब एस्ट्रोनॉमी के लिए, बट इम्पोर्टेंटली इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है जिस कारण इसको क्लासिफाई किया गया, इस सारी चीजों के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये जो अल्गोल है, इसी में हमने थोड़ी देर पहले इस राक्षसी का सर देखा था। यहाँ पे अल्गोल दिख रहा होगा बड़ा सा। तो ये अल्गोल मेडुसा के सर में है, ऐसी भी कहावत है। एनी, तो बात कर रहे थे कि हेड ऑफ मेडुसा परसेस हैज कट ऑफ द स्टार अल्गोल, जो उसमें प्लेस्ड है, इज वेरी ब्राइट एंड रेडिश। परसियस सरकमपोलर है, मतलब पोल स्टार के आसपास होने के कारण वो उधर चक्कर मारता रहता है, तो ये पूरी कॉन्स्टिलेशन साल भर दिखती रहती है। The best time to look for is when the sky is bright, night starry during the winter. Spring time मतलब अभी के समय, अभी के समय में आप नॉर्थ दिशा में देखोगे तो परसियस अच्छा से दिख सकता है। हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हमारे नॉर्थ में, जो मैं गांव में रहता हूँ शिरोडा गांव में, उनके नॉर्थ में है पनवेल। तो पनवेल के लाइट्स के चलते हमें नॉर्थ साइड अच्छे से नहीं दिखती स्काई। परसियस 24वां लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नाइट स्काई है, occupies approximately 615 square degrees, lies in the first quadrant of the northern hemisphere. ये जो आसमान हमको दिखता है उसके चार हिस्से किए जाते हैं, नॉर्दर्न एंड सदर्न, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा। इसका जो विजिबिलिटी पैटर्न है वो जिस एरिया में दिखता है, +90 डिग्री एंड -35 डिग्री में इसकी विजिबिलिटी रहती है। बॉर्डरिंग कॉन्स्टिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बॉर्डरिंग कॉन्स्टिलेशन है
एंड्रोमेडा, एरिस, ओरिगा, कैमिलोपार्डिस, कैसिपिया। टॉरस ट्रायंगुलम यहाँ नहीं दिख रहे हैं, ट्रायंगुलम दिख रहा था, टॉरस नहीं दिख रहा था। द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन इज अल्गोल, जैसे बताया। एनुअल मीटियोर शॉवर होता है यहाँ से परसीड करके। दिस कॉन्स्टिलेशन आल्सो कंटेन्स नोटेबल डीप स्काई सच एज मेसियर 34, हम उसका चित्र देखेंगे। द डबल क्लस्टर, द कैलिफोर्निया नेबुला, द लिटिल डम्बेल नेबुला मेसियर 76। जो बच्चे नए हैं, जिनको ये मेसियर ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं समझते, चार्ल्स मेसियर नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने रात रात बैठ के आसमान में दिखने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्काई के क्लासिफाई करते हुए जो फीबल ऑब्जेक्ट थे जिनको उन्होंने ढूंढ के निकाला, उनका स्टडी किया, उसको उन्होंने नाम दिया। ऐसे 110 ऑब्जेक्ट उन्होंने ढूंढ के निकाले और मेसियर लिस्ट तैयार हो गई। ये मेसियर मैराथन भी होता है, जैसे साइकिल चलाने का, दौड़ने का मैराथन होता है, वैसे ही 110 ऑब्जेक्ट जो इन्विजिलेटर या परी एग्जामिनर होंगे, उनको अगर आप सबसे पहले दिखा पाओगे टेलीस्कोप से तो आपका पहला नंबर आ गया, ऐसा माना जाता है। ऐसी मैराथन वो होता है। अपने यहाँ ये सब छोड़ के लोग लाइन में खड़े रहते हैं धर्मस्थलों के, तो उनको ये सब चीजों से कोई सरोकार नहीं। एनीवेज, कम टू द माइथोलॉजी। हाँ, बट फिर भी इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जरूर एक है कि जो बच्चे इस सब चीज में ध्यान देते हैं वो एस्ट्रोनॉमी का गोल्ड मेडल ओलंपियाड का भी लेके आते हैं। भारत का तो इस मामले में काफी नाम है कि हम बहुत बार वो जीतते हैं। तो वो जो है वो मेहनती है, उसके लिए आपको कुछ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसमें से आपको मतलब आपको तो मालूम है, बट बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं होता। ठीक, let's get into the very interesting part. Perseus contains 6 stars, which has got confirmed planet. Brightest stars is Mirifac, Alpha Persei, and the apparent magnitude is 1.7. Perseus contains 8 named stars. Proper name of the stars have been officially approved by the IAU, International Astronomical Union. Those are Algol, Atik, Berhenia, ऐसा आपने सुना होगा किसी पिक्चर में, तो वो इधर से आया है। Menkib, Miram, Mirfak, Mizam and Musfeliha। अभी माइथोलॉजी में चलते हैं जो हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहती है। The story of this constellation is associated with the Greek hero Perseus. He was the son of Queen Danae and the grandson of the king Acrisius, ruler of the Argos province. The oracle told the king, Argos province के king को Acrisius को किसी ने आके ये बताया कि he will be killed by the Perseus and the king decided to capture his daughter in a dungeon। अब ये क्या स्टोरी है? ये तो भाई यशोदा देव की श्री कृष्ण भगवान वाली स्टोरी है। मतलब इससे ये सीखने जरूर मिलता है, लोग यहाँ वहां आते थे, इधर उधर की स्टोरी चुराते थे और वहां जाके अपने नाम से बेचते थे। और ये स्टोरीज के ऊपर लोगों को आजकल कितना कुछ ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि काम धाम छोड़ के इसी स्टोरीज की पारायण करते हैं। तो यहाँ अपने यहाँ नमूने नहीं है, दुनिया भर में ऐसे नमूने हैं जिनको काम धाम से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए उन चीजों में। तो यहाँ भी ऐसी एक स्टोरी है कि जिसमें हमने देखा कि एक राजा को किसी ने आके बोल दिया कि भाई तुम्हारा पोता तुम्हारी जान देने वाला है, तो भाई उसने अपने डॉटर को ही प्रिजन में डाल दिया। अभी जीउस, काम धाम तो है नहीं उसको, तो जीउस फेल्स इन लव विथ हर एंड सिंस इट वाज नॉट एबल टू रीच आउट टू हर, ही डिस्कस्ड इन अ गोल्डन रेन। एक अपने यहाँ गोल्डन रेन हो जाए ऐसा मुझे बहुत बार लगता है, बट एनीवेज उनके यहाँ हुई। और जैसे ही वो गोल्डन रेन उस लड़की के मतलब गोद में गिरी, तो वैसे इमीडिएटली शी गॉट प्रेग्नेंट। अभी ये सब कहानियां हैं, हंसो मत और मस्ती भी मत करो। किंग वॉज सुपर मैड और उन दोनों को पकड़ के उसने समुद्र में फेंक दिया। अभी ये सब होने के बाद भी हिंदी पिक्चर की तरह वो ज्यूस मैनेज टू सेव देम बोथ। ओके, दे लैंडेड ऑन द आइलैंड सेरिफोस। Later on, Danae was forced to be married, and the Perseus did the best he could। Perseus कौन है? उनका बेटा। Could do to prevent that, to save his mother। One time, he even promised his foster father the head of Gorgona Medusa। ये मेडुसा वही है जो सबको मारती थी, बहुत ही खतरनाक थी। राजा को ऐसे लगा कि ये इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मिशन ये तो कर नहीं पाएगा। सो उसके एबिलिटी को उसने डाउट किया एंड उसने उसको मारने के लिए भेजा। अभी क्यों डाउट किया? क्योंकि मेडुसा की खासियत ये थी कि एवरी ह्यूमन जो उसको देखेगा वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता था।
तो फाइनली परसेस ने जाके उसका सर काटा और उस सर का कुछ एक मस्त लॉजिकल इस्तेमाल भी किया। अथेना इसी कहानी की एक स्टोरी की किरदार वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग मेडुसा इनटू द मॉन्स्टर। ये सब शाप उपशाप वाला खेल जो अपने इधर है माइथोलॉजी में, वो सब जगह होता है। ये उन्होंने ही मदद की इस परसेस की, so he could kill her. Perseus killed her three sisters, the mortal Medusa. He later used her head to turn Cetus. अब ये सेटस कहाँ से पिक्चर में है? ये सेटस भाई साहब वही है, समुंदर के श्वापद क्रिएचर, बहुत ही डरावने क्रिएचर जो खाने आ रहे थे। किसे आ रहे थे खाने? देवयानी मतलब एंड्रोमेडा को, जिसको पत्थर से बांध के रखा था समुद्र किनारे, क्योंकि उसकी जो माता जी थी कैसियोपिया, शर्मिष्ठा अपने इधर वाली, वो अलग स्टोरी है। तो ये कैसियोपिया अपनी खूबसूरती पे बहुत नाज कर रही थी और उन्होंने समुद्र देवताओं का अपमान किया। तो भाई उसके चलते उन्होंने बोला कि एंड्रोमेडा को हमारे हवाले कर दो। तो ये जो हीरो है, क्या किधर गया, सेटस नाम का सी क्रिएचर, वो उनको खाने जा रहा। बट जब ये चीज होते हुए देखा किसने? परसियस ने। तो उसने उसको मारा भी सेटस को और इनको छुड़ाया भी। ऑब्वियसली बाद में जाके उनकी शादी हुई होगी, ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं। बट यहाँ दूसरी, ये तो यूरोपियन स्टोरी जो इधर उधर कैसे भी ऊट पटांग तरीके से कनेक्टेड रहती है, अपने यहाँ की स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है, ये तो मैं खुद भी मानता हूँ। तो यहाँ की स्टोरी का क्रक्स ये है, एंड्रोमेडा एक ऋषि कन्या है, कैसियोपिया, एंड्रोमेडा मतलब देवयानी, कैसियोपिया मतलब शर्मिष्ठा, ये एक राजा की कन्या है। और ये सारे लोग जहाँ पे है वहां पे कभी ययाति आते हैं, और इन दोनों, शुक्राचार्य की एक कन्या है बेसिकली। तो इनके झगड़ों में आपस में एक की शादी हो जाती है, दूसरे को दासी बना के लेके जाती है, और फिर कुछ ऐसा किस्मत का खेला होता है कि बाद में सिचुएशन एग्जैक्टली उल्टी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है, इन चीजों के बारे में पढ़ना है तो आपको सिर्फ ययाति नाम का एक नॉवेल जो विश्व खांडेकर जी ने लिखा है उसको पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही फेमस हुआ। तो वही इंडियन माइथोलॉजी की कंप्लीट स्टोरी बहुत ही लूसीड इंटरेस्टिंग तरीके से बता। आपको चाहिए तो फुर्सत में मैं भी बताऊंगा। नाउ विल गेट इनटू द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ नोइंग द स्टार्स। यहाँ जो भी इतने देर से मैंने चित्र दिखाया है, इन तारों को हम जल्दी खत्म करें। Myrfac Alpha Persei is a supergiant star belonging to the spectral class of F51b. It has the visual magnitude of 1.806, approximately 510 light years from Earth. The star's traditional name Myrfac and Al-Jani mean the elbow and flank or side respectively in Arabic. Gamma Pegasi in the nearby constellation Pegasus is now formally known as Al-Jani. पुराने जमाने में जब ये कॉन्स्टिलेशन को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जिस तरीके से प्योरली एकदम मैप बेस्ड सेपरेशन किया, वैसा नहीं था। तो वेरियस सिविलाइजेशन के वेरियस कंफ्यूजन के चलते कभी तारे इस कॉन्स्टिलेशन में पकड़े जाते, कभी उस तरीके से। वैसे ही पेगासस कॉन्स्टिलेशन का एक तारा जो है अल्जेनी, वो इसमें पकड़ा जाता था। अभी हम आते हैं अल्गोल, जो मेडुसा के सर में है, उसको डेमोन स्टार बोला जाता है इसलिए। वो बहुत ही फेमस स्टार है। इट वाज द फर्स्ट इक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार एवर डिस्कवर्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल स्टार टू बी फाउंड। बेटा परसे मतलब अल्कोहल इन फैक्ट इज अ ट्रिपल स्टार सिस्टम। ए, बेटा परसे में जो ए है व्हिच इज इक्लिप्स्ड बाय द बेटा परसे बी, apparent magnitude of the system is 2.1, but it drops to the 3.4 every 2 days, 20 hours and 49 minutes, and stays dimmer for around 10 hours, which is how long the eclipses last. ये इक्लिप्स तारा तारे को कर, आप यहाँ समझ सकते हो कि इक्लिप्स का कंसेप्ट हो, ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट हो, ऑकुल्टेशन का कंसेप्ट हो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इससे हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। ओके, अभी इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ सरफेस पे ही पढ़ेंगे। तो बाकी जो बहुत सारे तारे हैं, जैसे आपको यहाँ अति दिख रहा है, आपको यहाँ पे मिराम दिख रहा है, इन सब के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। एक चीज के बारे में जरूर पढ़ेंगे, एक नोवा परसेई है, मतलब नया शुरू होने वाला स्टार। was GK Persei was the bright nova that occurred in 1901. Peak magnitude was 0.2. It was the brightest nova of the modern times till 1918, when the nova Aquila occurred, which faded to the magnitude
G Percy की बात करें, faded to the magnitude of 12, but had an occasional outburst of the 2 to 3 magnitude. In the last 30 years, the outburst has become pretty regular and lasts about 2 months every 3 years or so, which makes GK Persei resemble not a typical nova but dwarf nova type cataclysmic variable star. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज मुझे भी समझ में नहीं आती, बट जो ये टर्मिनोलॉजीज आप सुनते हो या आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो आपको सही तरीके से उसकी जानकारी मिलेगी। तो नाउ एक बार हमने यहाँ देख लिया, यहाँ जो नाम है स्टार क्लस्टर निबिला वगैरह, इनके आगे जाके हमको डिटेल्स मिलेगी। हमारे हिसाब से कभी कभी इस कॉन्स्टिलेशन को, परसियस को, एक शू फ्लावर की तरह, हिबिस्कस की तरह भी देखा जाता है। कैसे दिखता है देखिए, अभी मैं ऐसे ये माउस जो घुमा रहा हूँ इस आर्क पे ऐसे, वो ये आर्क है ऐसा आप सोचिए। फिर ये जो पॉइंट है वो ये तुरा है, वो जो प्लीड्स है कृत्तिका, और ये वो लाइन है। आप बोलोगे ये भाई साहब किधर है, ये वाली आर्क, ये वाली आर्क ये है। ओके, तो इसी तरीके से इसको शू फ्लावर, दसवंदाचं फूल ऐसा भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पे उसके वो फोटोज दिखाने की कोशिश की गई है, प्लीट्स दिखाया गया है, जबकि यहाँ से ये प्लीट्स यहाँ आता है, बट टॉरस कॉन्स्टिलेशन से भी इसका कनेक्शन जोड़ा जा सकता है। यहाँ ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का बाकायदा दिया हुआ मैप है। अलगोल दिख रहा है आप लोग, मेरे फैक्ट दिख रहा होगा, मेरा रैम दिख रहा है, अटिक, मेनकीब, ये सारे तारे यहाँ पे हैं। यहाँ पे M34 जिसको हम पढ़ेंगे और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द नोवा परसी, जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई ये बीच बीच में ब्राइट होता है, बीच बीच में कम होता है, और 1901 में लेटेस्ट दिखा हुआ सबसे ब्राइटेस्ट नोवा था, बट 1918 में अकीला कॉन्स्टिलेशन के नोवा ने उसको सुपरसीड कर दिया। इन्हीं, तो ये आपने देख लिया, ये M34 ओपन क्लस्टर विद विजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 5.5, अप्रोक्सीमेटली 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ओके, डिस्कवर्ड बाय द इटालियन एस्ट्रोनॉमर जिओनी बैटिस्टा होडियरना in mid 17th century. Between 200 to 250 million years old है ये। मेसियर ऑब्जेक्ट कैटलॉग इसको 1764 में डाला गया। In good condition appears like a blurry patch slightly north line of the Algol to Alma. Okay? अल्मा की तो गैमा एंड्रोमेडा। तो ये इतना बढ़िया नहीं है, इससे कहीं अच्छे ओपन स्टार जो आपको दिख सकते हो, ओपन क्लस्टर जो आपको मैं दिखाऊंगा कभी मिलते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लिटिल डम्बेल नेबुला, ये वेल्पिक्युला कॉन्स्टिलेशन में जो डम्बेल नेबुला है उसके जैसा दिखता है, उसका नाम M27 है, तो इसको M76 उसी की तरह दिखने वाला लिटिल नेबुला के तौर पर बोला गया। इसका मैग्नीट्यूड बहुत फीबल है, 10.1, 2500 लाइट ईयर्स डिस्टेंस है सन से। ओके, और ये 76 में मेसियर ऑब्जेक्ट है, आप देख भी सकते हो डम्बेल शेप जैसा दिखता है। ये परसियस में कुछ इंटरेस्टिंग चीज है कॉल्ड मोलिकुलर क्लाउड। अभी यहाँ आप देख सकते हो, ये छोटा मोटा नहीं है मोलिकुलर क्लाउड, दिखने में आपको दिखेगा, बट लोकेटेड अबाउट 600 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम और 6 इंच बाय 2 इंच इन साइज एंड नॉट वेरी ब्राइट। ओके, तो ये जो चीज है ये काफी जायंट है मोलिकुलर क्लाउड और स्टेलर नर्सरी। इट कंटेन्स IC348, तो ये चीजें आपको यहाँ देख सकते हैं जूम करके। टिपिकली मोलिकुलर क्लाउड में कितनी अपनी एक लेंस पैटर्न होती है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है। अब देख रहे हैं इसमें अतीक है, यहाँ पे मेनकीब है, यहाँ पे इस तरफ ऊपर की तरफ कैलिफोर्निया नेबुला है। तो मतलब आप जो पढ़े उसी कॉन्स्टिलेशन के अंदर ही ये सब लाई कर रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। कोई भी बाहर से नहीं दिखा रहे, इसी के अंदर ये चीज। ओके, नाउ ये परसियस क्लस्टर है, इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी आकाश गंगाएं गैलेक्सीज आपको दिखाई दे रही है परसियस क्लस्टर में। और ये जो परसियस क्लस्टर है इसमें बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज हैं,
240 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ स्पैनिंग, इसका ही अपना स्पैन जो है वो 11 लाइट ईयर्स है। आपको मालूम होगा अपने सोलर सिस्टम का स्पैन जो है वो 1 लाइट ईयर है। The cluster is receding from us at a speed of 5000 kilometers per second. आपको एक कंपैरिजन मैंने थोड़ी देर पहले दिया है कि स्पेस शटल सिस्टम का स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड क्या होता है। 2017 में साइंटिस्ट स्टडिंग डाटा ऑन नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी found a giant wave of gas rolling through the Perseus cluster. The wave looked like an enormous. We are still not presenting. अच्छा, अब बोले भी नहीं मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा। आवाज आ रही है? ये कब हुआ? दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। जॉइन नाउ। मैंने नेटवर्क कनेक्शन लूज किया था। कब हुआ? जस्ट नो प्रेजेंटेशन विल बी सबमिटेबल गॉट। यस सर, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग। यस, ये नाउ नाउ। अच्छा अच्छा, अभी की बात। अच्छा, तो ठीक, उसकी आप चिंता मत करो। नहीं दिखेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लोजिंग। ओके, तो आपने देखा भी नहीं होगा परसेस क्लस्टर, तो चिंता। मेरी आवाज आ रही कि नहीं, लिखो फटाफट। ये लास्ट स्लाइड था, तो ज्यादा चेक करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दो छोटे मोटे आवाज आ रही है ना, बस। फिर क्या, आप टेंशन मत। 2 मिनट का काम बाकी है, जिसमें मैं बोलने वाला था एक एनजीसी 1333 पे, और बात करने वाला था एक डबल क्लस्टर पे, और बात करने वाला था एक चंद्रा ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व जो देखा। देखते हैं, लाइट आ गई होगी। ज्वाइन नाउ करने बोल रहा है। ज्वाइन तो किया, ठीक है, अभी प्रेजेंट करता हूँ। विंडो आ गया आ गया। हमारे यहाँ नेटवर्क का कुछ इश्यू है, तो उसकी वजह से सडनली सब कुछ गायब हो गया। तो हम बात कर रहे थे इस परसेस क्लस्टर की। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की काफी। नाउ वी विल गो इनटू द accumulation of 270 hours of Chandra observatory's observation on the central region of the Perseus galaxy cluster. क्या दिखा? 270 घंटे ऐसा कुछ दिखा। अब ये हमें समझ में नहीं आता है, लोगों को जो समझ में आता होगा। यहाँ लिखा इतना ही गया है कि it revealed the evidences of turmoil that has racked the cluster for hundreds of millions of years, one of the most massive objects in the universe. उसको ब्रेक किया गया because of the some external forces. एक डबल क्लस्टर की भी हम यहाँ बात करेंगे, जो एनजीसी 869 है। आप यहाँ देख सकते हो बकायदा एनजीसी 884 एंड 869 दोनों का पैटर्न यहाँ दिखाया। अप्रोक्सीमेटली 7000 लाइट ईयर दूरी पे है। और एनजीसी 1333 रिफ्लेक्शन नेबुला इन परसेस, मैग्नीट्यूड 5.6 है। कैलिफोर्नियम नेबुला का फोटो हमने वहां देखा, जो यहाँ पे मेरे पास नहीं है अवेलेबल। सो यहाँ पे परसिडिस मीटियोर शॉवर की जानकारी, जो 9 से 14 अगस्त जब हमारे यहाँ बारिश होती है तब दिखता है। ये कॉमेट स्विफ्ट टटल नाम के कॉमेट का रेमिनेंट्स है। अबाउट 133 साल पर ऑर्बिटल पीरियड है इसका। ये हमें अगस्त के पीरियड के कारण दिखता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश होती है। तो कहीं और से हम इसको देख सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया दिखता है, ऐसा इसका नाम और ख्याति है। तो आज यही रुकते हैं। वी हैव फिनिश। नाउ यू कैन लीव द क्लास, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप सबको एग्जाम के लिए तैयारी करनी। ये जो हुए, ये मतलब परसियस कॉन्स्टिलेशन नहीं, 10वीं का जो लेक्चर मैंने लिया स्पेस मिशन पे, जिससे आपको बेसिक्स मिला एस्ट्रोनॉमी के स्पेस मिशन का, लेटेस्ट हैपनिंग का, उसके बारे में एमसीक्यू होगा। ओके, कहीं से भी आप किताब डाउनलोड कर सकते हो, या ये जो है इस वीडियो को भी आप देख सकते हो, L43 L44। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। यू कैन प्लीज लीव द क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज लीव द क्लास। इसमें कुछ डाउट नहीं? थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय। चलो जल्दी।